we'll do is if you have any questions, please put it in the chat box. We'll obviously have a lot of people who have joined. So would sincerely request that each one of you, if you have any questions, please keep on putting it in the chat box. And Manish Ji from Catafly will make sure that Always answer go your ahead. questions. Yes. And if there are any specific questions towards the end, we'll be happy to take that with your camera on and everything. And just to make sure that all of you know that we are live on Facebook as well, because some people join through that. But very some of you who have um, who wanted to join in Zoom, we have obviously provided the Zoom link so that we can learn live here. Okay. So with that, let me actually start. We are already 5 minutes past. I'll again extend a very, very warm welcome to each one of you. This is a very, very unique workshop with Mr. Sambhav Shyam, who come from the family of the pioneers of the Gond art. If we'll cover some of these topics just now in a bit. Uh, I am Nitin Pradhan from Catafly. Catafly is a travel experience-based company. We focus very exclusively on bringing the native art and culture of India and find ways to share it with you. Conducting these digital workshops is one of a very unique way where we provide a platform to the native artists as well as to each one of us to learn from these artists who have been living and breathing it for generations. So it's a great opportunity for each one of us. Now, with that, let me share a brief introduction video about Gondar. Second, and here we go. नमस्कार, मेरा नाम संभव सिंह श्याम है और मैं मध्य प्रदेश भोपाल में रहने वाला हूँ। एक गोंड आर्टिस्ट हूँ और मैं पिछले 22 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। मैंने करीब लगभग पूरा भारत ही घूम लिया है, कुछ ही प्रदेश बचे होंगे, कुछ बाहर भी गया हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी मैंने काम किया है। Wonderful. Now I'll quickly switch over to providing a brief context about Gond art so that everyone understands all the good details. Manish, we can see my screen with the digital art and culture. Yeah, very much. Yeah. Wonderful. So, as all of us know, and probably if you don't, then let me recap for you. Gond is a tribal art, what we call as the heart of India. So, it's the art from the heart of India. What it really means is it comes from Madhya Pradesh, which is obviously central India, as we know, and it also comes from the heart of MP. Is a village called Patanga, and all the traditional artists typically come from Patanga. Yeah, there are different kind of Gond art, which is kind of Digna, which is more of the geometric patterns, or the BT Chitra, which is really around the composition of animals,
the flora, fauna, and the human beings. Uh, One of the very, very unique aspect of this is that irrespective of which pattern that you use, each artist will actually find a way to do the detailing within the main motif. So, say like here, you are seeing that there's a motif of the animal, but the detailing within this will be a signature style of the artist who has done that. And every acclaimed artist will find their own unique pattern of detailing. In fact, that's what they call as their signature style. Yeah. Just taking a step back, Goan art is considered to be one of the oldest art form. Yeah. Uh, Literally, it means it is derived from a word called Goan, which means the green mountain. And they say that this is really about being one with nature. How do you really appreciate, respect, and honor the nature and everything which is around us? So while it is one of the oldest art, yeah, in the modern times, if we look at it, it has become far more prominent in the last 40 to 45 years. And I think all of us owe a lot to the gentleman called Jangat Singh Shyam, who really was the pioneer in terms of bringing it to mainstream. And of course, he got good support from Mr. J. Swaminathan, who is the or who was the director of the Bharat Bhavan Museum in Bhopal. And if any of you come from that part of India, please do not miss a chance to visit Bharat Bhavan in Bhopal. It has probably some of the most exquisite collection of the Goan art that you would see. There are a lot of artists who have obviously contributed to the art in various ways, and Sambhav Shyamji also comes from the same lineage, and Jangat Singh Shyam, as we were just talking about, uh, uh, he is grandfather of Sambhavji. And even Sambhavji's mother is one of the really, really famous artists. Uh, if you look at some of the prominent artists that we have Jangat Singh Shyam, entire family, Mayank and Japani are there, is Jangat's son and daughter. Then obviously you have Durga Bai and Bajju Shyam, and you would see that each one of them have a very unique way of detailing the art. Even the expression, some of them choose to express it maybe primarily using the black and white. Some of them actually use some very, very bright colors. Uh, Having said that, today we wanted to feature one of the really important person for all of us here. That is Kalavati Shyam, that is Sambhalji's mother. Uh, Unfortunately, she expired 1.5 or 2 months ago, and Sambhavji has come back from a break. Of course, as all of us know, this is a very, very important thing that he had to manage. And with due respect to Kalavati Shyamji, she was, of course, the National Award winner from our president and has been one of the foremost artists for the last generation. Sambhavji is carrying her legacy and everyone's legacy forward. Now, with that, let me stop sharing and put the focus on Sambhavji. Sambhavji is ready with his what we call as his aujar, or the way he gives expression to his art. So, Sambhavji, welcome back. Uh, Really nice to have you with us today again. And we are, of course, starting the detailed workshops from Monday. But before that, we thought of scheduling this workshop where we can get back into the rhythm, and you can of course share your story as well as express it through what we are going to do today. तो आज क्या बनाएंगे संभव जी? बेसिकली मैं तो हमेशा पिकॉक ही बनाता था, लेकिन आज मैंने फिर से स्टार्ट किया है कि
मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी मम्मी को एक जब भी मैं उनसे बोलता था मम्मी कुछ बनाओ तो सबसे पहले वो डियर ही बनाती थी। मुझे लगा कि आज मैं डियर से स्टार्ट करूंगा ये, क्योंकि Great. आज मेरा उनके बाद जाने के बाद अगर कुछ मेरा स्टार्ट हो रहा है तो मैं उनको ही ये वो करूंगा कि आपके लिए ये सब कुछ होगा, Yeah. क्योंकि मेरी गुरु हमेशा से वही रही हैं और उन्होंने ही मुझे जो भी कुछ सिखाया है और जो आगे बढ़ाया है, तो आज मैं उनके लिए ही सब कुछ करूंगा और उनके ही मार्ग पे चल रहा हूँ मैं। उन्हें उनके द्वारा ही मैं सीखा हुआ हूँ हमेशा से। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो किया, उत्साहित किया कि नहीं बेटा इसको कैसा करना है, इसको ऐसा करना है, कि गोंड आर्ट को हम कैसे बढ़ाते हैं, गोंड आर्ट एक्चुअल में है क्या। उन्होंने मुझे हर चीज को समझाया है, हमेशा समझाया है कि कभी भी आप बताओ तो गोंड आर्ट के एक्चुअल बारे में बताओ कि आप गोंड आर्ट एक्चुअल है क्या, वो भित्ति चित्र है, वो कैसा है, क्या है। तो अभी मैं करते जाऊंगा, आप आगे भी आप हमसे जुड़िए तो मैं आपको हर चीज धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा गोंड आर्ट के बारे में, कि गोंड आर्ट कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से है और उसको क्या बोलते हैं, कैसे चलता है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिलती जाएगी। बहुत बढ़िया संभव जी, इससे बहुत भावभीनी बात आपने की है। एंड आज एक श्रद्धांजलि के तौर पे डियर से शुरू करते हैं। तो आप चालू करिए और हम इंस्ट्रक्शंस बाकी लोग को ट्रांसलेट करते जाएंगे, ठीक है? For everyone's reference, Sambhav ji obviously has his own style and preference. He typically used to draw peacock, and but today one of the main patterns that his mom used to draw was deer. So we will start on a piece of A4 paper, and we'll primarily draw deer and the detailing of it using the black and white and some colors. So Sambhav ji, शुरू करते हैं। जी पहले क्या करेंगे? पहले सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। हम A4 साइज यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास तो शीट थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैं आपको एक मेजर बताता हूँ कि A4 का साइज क्या होगा। 2 सेंटीमीटर। संभव जी, आपका कैमरा थोड़ा सा फ्रीज हो गया शायद। फ्रीज हो गया, आपकी आवाज आ रही है साफ, लेकिन कैमरा फ्रीज हो गया। अभी हाँ, अब बढ़िया है, अभी चल रहा है। ये मैं मेजर करके आपको बताता हूँ। ठीक है। So he has taken a paper which is slightly bigger than the A4, but we will just show the measurement which is equivalent to the A4 size paper. हाँ, एक्चुअल मेजरमेंट ये हमारा ये जो जितनी हमने बॉर्डर ली है ये है A4 साइज का। हाँ जी। So this entire piece that you are seeing right in front is equivalent to the A4 size paper. And गोंद आर्ट में हम normally border नहीं बनाते हैं। हाँ संजय जी? जी। तो अभी सबसे पहले मोटिव की जो शुरुआत करेंगे, तो उसमें कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, बताइए और शुरू करते हैं, जिससे कि लोग आपको देख के कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा मेजर एक्चुअली क्या है कि ये जो हमने साइज लिया है ये हमारा A4 है। हम इसमें क्या करते हैं, एक बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम कोई पिक्चर्स तैयार करते हैं तो उसमें हम कोई भी अगर एक फिगर बनाते हैं तो फिगर क्या होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट होता है कि हम इसके बाहर ना करें। अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं और हम उसको अगर चला रहे हैं तो पेंटिंग अगर वो आउट ऑफ बॉर्डर होती है तो क्या देखने में बहुत बुरी लगती है। उसका एक
मेजरमेंट होना चाहिए हमेशा कि हमको इतने मेजरमेंट के अंदर ही करना है पेंटिंग को। तो मैं अभी इसमें 1 सेंटीमीटर का एक वो कर रहा हूँ। आपका जो भी A4 साइज आपका अगर आपके पास पेपर हो तो आप उसमें Everyone, on your piece of paper, basically you can leave 1 centimeter from all sides. While of course it becomes quite naturally flowing when the artists do it, but for people who are learning to retain the sense of proportion, it is a good practice to kind of really take out the 1 centimeter from the borders. तो आपका मैं एक बार मैं आपको मेजर करके बता देता हूँ कितना If है। it is A3, excuse me, नो नो मैम, A3 है तो मैम A3 तो आप एक कॉर्नर से आप उसके कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं। A4 का ठीक मैं है। आपको साइड में मेजर करके बता देता हूँ मेजर क्या हो रहा है। बॉर्डर की जरूरत नहीं है ना फिर A3 पर, नहीं 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 ना, ठीक। नीना जी, बॉर्डर की जरूरत नहीं है, इसे थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं जिससे कि अंदर आपको डिटेलिंग करने में आसानी रहे। ठीक है, तो अगर आप A3 कर रहे हैं तो उसमें मे बी आप 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए समझिए, आगे बढ़ते हैं जी। आपने, मैंने देखा है कि वो बीच में एक सेंटर मार्क आपने लगाया है क्या पेपर को? नहीं एक्चुअली मैंने सेंटर मार्क नहीं लगाया उसमें। हम्म, हाँ ये वाला ठीक है, ये कॉर्नर पे है। ठीक है, अभी आपका कैमरा थोड़ा सा फिर से फ्रीज हो गया संभव जी। एक मिनट, अभी भी ये जो सेंटर मार्क है इसका, हाँ वो सेंटर मार्क, हाँ मैं वही बोल रहा था दैट वो सेंटर मार्क आपका जो है। ये हम अभी जब स्केच स्टार्ट करेंगे फिर उसके लिए इजी हो जाता है कि हमको फिगर कैसा बनाना है। तो इसका भी 28 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है 28 सेंटीमीटर 0.5 है। 28 जी okay. I would request all the participants to be on the mute so that we can focus here. And of course, any specific question, please do put it on the chat box. I mean, I see some question related to which fabric pen can be used for the permanent thing on the fabric. We'll take many of these questions towards a later part. I hope that's okay. Let's right now focus on what we're doing. And thank you so much for understanding. उसकी जो width है ये 19 सेंटीमीटर है। And again, sorry Nitin, I'll just add on to it. There's no very specific to go with the all specific parameters. It's just for that the painting should be balanced. So even it is 19, 19.5, 20, it will do. Sure. So small variations here and there is fine. This is just to kind of give a bit of a proportion to your painting. So this is basically around almost the center mark of your paper, whether you're using A4 or A3. This is just to kind of give a balance. ये पेंटिंग के बीच का एक आपने लाइन बनाया है जिससे कि ऊपर और नीचे थोड़ा आसानी रहती है उसमें। आप लोग जब भी यूज करें पेंसिल प्लीज लाइटली यूज कीजिएगा, डार्क बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि हमको जब उसको हम शार्प रब करते हैं तो रब करते हुए वो मिटेगा नहीं।
ठीक है, बहुत बढ़िया बात. All of you, please do not use the pencil in a very dark color or dark shade or with a lot of pressure, because ultimately we'll have to remove all these lines. This is just to get some of the markings. चलिए आगे संभव जी. ओके. आगे चल सकते हैं संभव जी. ओके. I hope the video is clear to everyone. Some of you were not able to see Sambhavji's screen. I hope it's fine with everyone now. No, no, it's fine. It's clearly okay with that. तो संभव जी ने ये देखिए अभी एक फ्री हैंड से नीचे वाले पोर्शन में एक स्ट्रक्चर बनाया है. हमारे all of you- बीच का लाइन करने का एक ही रीजन होता है कि हम उसका जब हेड सेंटर पे लेते हैं डियर का. बाकी अब जब आएंगे क्लासेस में तो मैं बताऊंगा पूरा. मेरे हमारे पास समय कम है तो मैं उतना ही बता पाऊंगा. अभी हमारा मेन हिस्सा क्या होता है कि जब हम कोई भी हम एक जब उसका स्केच तैयार करते हैं, कोई भी एक एनिमल होगा या कुछ भी, क्योंकि बेसिकली जब गोंड आर्ट बनता है तो वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है. तो हमको एक बैलेंस करना होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक का कौन सा हिस्सा हम बैलेंस कर सकते हैं. इसलिए जैसे मैं डियर बना रहा हूँ तो मुझे मालूम है उसका हेड मुझे सेंटर पे रखना है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए कि ऊपर अगर हम ट्री बनाएंगे और नीचे अगर डियर आएगा तो एक्चुअली बेसिकली वो ट्री ऑफ लाइफ ही होता है. लेकिन हम उसमें दर्शाते हैं कि हाँ डियर के ऊपर ट्री है, ट्री के में मतलब हर चीज को एक मेंशन करना है कि एक पेंटिंग के ऊपर कैसे मेंशन कर सकते हैं. तो उसको बैलेंस करना भी जरूरी होता है. उसी लिए हमने एक मैंने ये बॉर्डर लाइन जो दी है, सेंटर लाइन है जो उसकी. जी संभव भाई जी. So what Sambhavji just explained, to retain the sense of proportion, essentially that's the reason you have divided the paper into half. And on the lower part, he is basically drawing the outline of a deer right now. And in the upper part, he will basically draw a tree and the detailing of it that we will see soon. And in the Gond art, they always say that tree is at the heart of everything, because obviously tree is our protector and our nurturer. So in Gond art, whatever you draw, if you are drawing a man, you will probably draw a man sitting under a tree. If you're drawing a river, you will probably draw a river flowing next to a tree. And if you are drawing an animal, it will be by the side of a tree. So the tree becomes a very, very important motif in the Gond art. So right now, while the primary motif is obviously of a deer, as we are seeing, after this, we will also see how it goes along with the another motif of tree, which is always a central component of it. In the detailed workshop, obviously, we do it at a much slower pace and take much more complex piece of work. Right now, I would request that the way he is drawing and simply doing the detailing of the various parts, we are trying to retain a gentle pace, not a very fast one, so that each one of us can follow. You would see that only a small part of the deer head is above the center line. And then of course the mouth is just below that. And then the body is in the bottom 2/3 part. I hope Sambhavji's screen is on spotlight, because I think that's what we had done already. Manish, can you just make sure that it is always on the spotlight? Because for me, that's the way it is. Yeah, sure. Just give me a minute. That's a very, very smooth sketching, Sambhavji. So अभी थोड़ा सा 30 सेकंड देते हैं लोगों को ये कंप्लीट करने के लिए. और for everyone's reference, Sambhavji, as he just restarted work after some time, he has actually taken on a very prestigious project. He is working with the Reliance Group on their Jamnagar
refinery on one of their resorts, and he has just come back this morning, and it's very nice of him that we are able to have the session on time. वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू बन रहा है एक्चुअली। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू बन रहा है वहां पे। वाह। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी जानवर हैं सबकी ब्रीडिंग वहाँ पे है, और सबको उन्हें कलेक्ट करके रखा है कि एक एक जानवर के बारे में आप हर जो भी एनिमल है, बर्ड से लेके एक कीड़ा भी है, तो उन्होंने सब कुछ को वहाँ पे स्टोर करके रखा है, तो सबको दिखाना चाहते हैं कि हाँ एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में क्या क्या है हमारे पास देखने के लिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप लोग उसको फिर वो वहाँ पे ड्रॉ भी कर रहे हैं, तो हाँ, हम actually क्या सेशन वहाँ उस पे पे करेंगे। हाँ, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि जितने भी जानवर हैं वो क्या होता है कि जैसे इंसान है, क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं, किसी के इंसान को नहीं देखा, तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, उनको देख के डर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ यहाँ पेंटिंग्स बनाइए कुछ नेचर पे, क्योंकि उन्होंने देखा कि हाँ अगर हम सबसे ज्यादा गोंड आर्ट में नेचर को डिपेंड करता है, तो मैंने अभी क्या किया, कुछ जहाँ पे मैं पेंटिंग कर रहा था जिस वॉल पे, उन्होंने कहा यार यहाँ पे कुछ और मत बना, यहाँ पे सिर्फ घोड़ा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे घोड़ा फॉर्म है, तो मैंने सिर्फ घोड़ा ही बनाया। तो क्या पहले तो वहाँ पे किसी ने काम किया था तो कुछ और बनाया, तो घोड़ों की आंखों में शायद चमक थी, वो डर रहे थे, फिर मैंने वहाँ पे एक घोड़ा बनाया, फिर एक डियर बनाया, तो वो नेचुरल मतलब नेचर इतने वो है कि नेचुरली वो चल रहे थे, वहाँ वॉकिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको देखा कि यार वॉक बराबर कर रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इससे ही कुछ मिलता जुलता बनाते जाइए। अच्छा, एक चलिए तरीके से उसके उनको बारे जंगल में चाहिए पूरा का पूरा वो, लेकिन उसके बारे में कलरफुल यार चाहिए। एक अलग पूरा सेशन करेंगे और काफी बातें हैं ओके उसको ओके करने को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया तो आईपैड मैं आगे बढ़ूं? जो है आप अपना थोड़ा रीनेम करिए, जिससे हमें पता लगे किससे बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपको पाँव नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ। You are not able to see deer legs. I can actually see it quite clearly. I hope it's same for everyone else, that you are able to see I the. can't see it. I can't see the legs, please. Clear. Sorry. I'm sorry, who is that? That's Amrita Agarwal. I can't see the legs. No, it's quietly. I mean, So it's pretty clear. yeah, it's very clear. I It's don't actually very clear, and Maybe- it's on a full screen. Maybe you will need to make your screen full screen, because actually most people are able to see the full screen. It's right in the center. Thank you. Sorry for the disturbance. I've got it. Yeah. No. Okay, संभव जी आगे चलते हैं। ओके, सभी ऊपर के पार्ट से शुरू करेंगे, देखिए। हाँ ये डियर के आप उसके सीन के हिसाब से ही वहां पे पेड़ बनाएंगे, ऐसा क्या? जी, बहुत बढ़िया। So we will actually kind of derive the tree from the horns of the deer. So as I was saying, Gond art, since it predominantly is inspired by things around nature, and tree becomes a very central component of it. Here, the tree is actually emerging from the horns of the deer. So the simple set of lines that you would see on both sides, from the two main horns, and I think you could think more of it like the two main horns, and then the secondary horns are coming out of the two main horns, and then we will do the detailing around it. Please make sure to leave good space among these secondary horns, because a lot of detailing will happen there. तो आज संभव जी, आई थिंक आपका मन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट और थोड़ा सा कलर किया जाए, नहीं? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। So what we will see is that there is obviously a pattern around these things. So even in the secondary horns, you can actually take out the smaller parts,
which are nothing but equivalent of what you would see as, or you would call as the branches or the mini branches or the twigs. तो जो बोलते हैं कि डियर का जो सींग है उसके जो छोटे छोटे और सींग निकलते हैं, आप उसको एक इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि अगर आप पेड़ बनाएंगे तो ये छोटी छोटी ब्रांचेस और उसके अराउंड पत्तियां होंगी। तो संभव जी जो डियर बना रहे हैं, इट इज बेसिकली बारासिंगा, इज कॉमनली नोन एज इन हमारे यहाँ पे जो एमपी में जो बोला जाता है, इट्स अ स्वैम्प डियर। इट इज डिफर फ्रॉम ऑल अदर इंडियन डियर्स स्पीशीज, एंड बेसिकली उनका इट इज कॉमनली नोन एज फॉर 12 हॉर्न, नो उसके हाँ। बाद इसलिए दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज बारासिंगा। तो ये बारासिंगा जैसा है व्हाट। So I hope all of you are able to replicate the style that he is making. And of course, you can also bring in your own creativity and your own personalization or customization in the way that you are drawing the tree. You do not have to exactly copy it as it is, but the central component, the main motif and the secondary motif is what is important. Around that, you can obviously maybe the two main horns, you can have as many or as little horns that you would like to. So we still have some people joining in a little late, so I will just quickly recap for them. We are doing a piece of Gond art on A4 size paper. And in this A4 size paper, we basically left around a centimeter just for the borders. I mean, Gond painting in general does not have border. It is mostly to do with leaving the space for framing. We divided the paper into two equal parts just to kind of have a sense of proportion. On the lower part, we are doing a deer or an Indian deer, which is called Barasinga. And on the upper part, we are drawing the horns, which are represented as tree, because tree is one of the most important motif, and almost all Gond painting have some form of tree in it. And since this is a 1.5 hour workshop, we are drawing it at a slightly faster pace. There are obviously longer version of these sessions, and you could choose to join them, where we do a much more complex painting at a gentle pace over a space of 4 days, sometimes maybe 2 weeks. So there are different versions of it, and you can always get in touch with us for joining that. Normally, use a pen or pencil to make the painting, so he's facing little problem in erasing some part of it. Otherwise, they normally make directly from the brushes. That's a very important part, because obviously the artists obviously do not start with the pencil. It's for our benefit that they're doing it, so that in case we make some mistake, we can erase it. And they usually directly do it with the brush. So संभव जी आगे चलते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा सा पेंट को जहां भी करेंगे उसमें थोड़ा सूखने में भी टाइम देना पड़ेगा, ठंड हो रही है। हाँ संभव है, थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा अपने को। मैं भी येलो कलर ले रहा हूँ।
ठीक है, येलो कलर। उसका कोई स्पेसिफिक शेड लेना है संभव जी? हाँ, अगर उसका स्पेसिफिक मैं एक्चुअली मेरे पास गोल्डन येलो है, के पास है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा आप उसमें हल्का सा ऑरेंज कलर मिक्स कर सकते हैं, जिससे वो गोल्डन येलो शेड में आ जाएगा। Is it watercolor or acrylic? Whatever you wish. I Actually, mean, he is using acrylic color. तो हम Thank you. लाइट कलर ले रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ उसको। आप इतना रब करिए कि आपको दिखे वो। You can use watercolor also. He'll be using the acrylic color. So he's rubbing it off only to, obviously now he'll start doing it in the with the colors. If you're rubbing it off, his suggestion is that do not rub it off. And basically just retain a small, I would say, थोड़ा सा हल्का रखिए उसको. Some gentle impressions of it should still remain because you will need to follow Yeah. board. Yeah. Sure. समा भाई आपका स्क्रीन हेलो स्क्रीन पे से फ्रीज हो रहा है संभव जी. हाँ, अच्छा बीच में थोड़ा सा वो हो गया था. So it's basically he is using the acrylic color, but you can use other colors as well. This is a golden yellow, and if you do not have the golden yellow, then you could use the maybe mix gold. pinch of orange you can add on the normal yellow. Yeah, that will be fine. It will be look like a golden yellow only. ये ब्रश का साइज कौन सा होगा समझ जी? ब्रश का साइज एक्चुअली मैं तो 8 नंबर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सब लोग आपके पास जितना भी हो सके छोटा ब्रश यूज कीजिए। So he is using the number 8 brush, but obviously because he is quite adept at using the thicker brushes and do it faster, his suggestion is use the smaller number brushes so that you can retain the boundaries of the motif. हेलो समा भाई आपका I can hear you, but I'm not able to hear anything the artist is making. Is he speaking anything or? He is speaking in between, but primarily he is obviously focused on doing that. संभव जी आप कुछ बोलिए तो फिर देखते हैं बाकी लोग भी सुन पाते हैं कि नहीं. संभव भाई अच्छा, क्या मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है? नहीं कुछ बोलिए. अभी आ रही है, अभी आ रही है. नहीं दे रही किसी को आपकी आवाज, थोड़ा एक बार जोर से हुंकार कर दीजिए. बीच में का जोर से आवाज लगा दीजिए. Okay, everyone, I am here. Yeah, I can hear now. Okay. Thank you. Yeah. Okay. आपकी आवाज के इतने लोग दीवाने हैं, आप आवाज ही नहीं लगा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. एक्चुअली क्या पेंटिंग करते रहो तो ध्यान बिल्कुल वहीं एकदम एग्जैक्ट हो जाता है ना कि हाँ मुझे क्या करना है, तो ध्यान वहीं पे. आई कैन अंडरस्टैंड, वो थोड़ा रहता है हमेशा. सर मेरा एक क्वेश्चन है. या प्लीज. जी. ये हम एक्रेलिक कलर जब यूज कर हेलो या सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एक्रेलिक कलर जब यूज करेंगे मोटिव के अंदर, तो उसमें जो लाइंस बनती हैं, जो मतलब प्रॉपर क्लियर कैसे आएगा एक्रेलिक कलर यूज करने से? पैचेस बनने लगते हैं. अच्छा मैम, एक्चुअली क्या होता है जब भी हम कलर यूज करते हैं तो हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि एक्रेलिक कलर तो हम ठीक है सब कहते हैं कि एक्रेलिक कलर बेसिकली वाटर कलर ही होता है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें कि आप, क्योंकि वो वाटर कलर आपको हल्का सा उसमें 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप्स आपके हिसाब से आपको कितना, आपका ब्रश कितना थिक चल रहा है या फिर कितना लाइट वेट चल रहा है, तो आपको उस हिसाब से उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मेल्ट करना जरूरी है. देखिए एक्रेलिक कलर में एक ही दिक्कत आती है कि इफ यू टेक इट लिटिल लॉन्ग टू ब्रश इट आउट तो उसमें सूख जाता है, वो एकदम से प्लास्टिक टाइप का दिखने लग जाता है. हाँ, आपको कम बनाना है, फटाफट करना है, दैट इज वन थिंग. कभी भी कोई दिक्कत. थैंक यू.
एंड आपको जो है, आपको जो भी आपको लगता है पैचेस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बार पूरा जो भी आपने बनाया हुआ है उसको कर लीजिए गेट प्रॉपरली वंस, उसके बाद में आप दोबारा बना के उसके बाद दोबारा करिएगा प्रॉपरली, जो है उसको पूरा आराम से अच्छे से आ जाएगा। Your voice is not clear. Could you be a little louder? हेलो, Can I ask a question, please? Can you ask the artist that originally Gond was done in watercolor or a handmade color or what color? no, you missed the session, I think. Initially session you have missed out, I think. No? So initially, okay, so let me just answer that because this question is coming up quite a while. Originally, almost all traditional art would actually always use the traditional colors or the natural. So अभी भी नहीं मनी अभी बीच में हो गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। So it always starts with the natural color. The natural colors are always made with the natural materials, and later on, only when the modernization of the art started for Gond art started around 1980, as we discussed in the early part of this session. That's a time when the artists were supported by many activists for Gond art. It was the main pioneer was Jangat Singh Shyamji. J. Swaminathan from Bharat Bhavan in Bhopal actually helped him a lot in terms of adopting the art to the new materials, which includes obviously these acrylic colors, the watercolors, or the other colors, and the new materials. मेरे क्या लगता है ठीक है Sorry, Nitin. तो अभी इसको आई एम श्योर इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा संभव जी, है ना, कि ऑलरेडी सूख चुका है आपका। So by the time we can have 2 मिनट में other part we can color it out. बाकी का ऊपर वाला कर लेते हैं जब तक। So we'll give it a bit of a time for the colors to dry. And if some of you are facing the problem of having the patches with the acrylic color, I think it's more to do with the brushing technique as well as how much of a color you have taken and the amount of water you have mixed. If that has not come out smooth in the first iteration, try to do it again. You will need to let it dry for a bit, and in the meanwhile, we will progress with the other parts of the model which can be detailed. So somebody इसमें जहाँ पे कलर की जरूरत नहीं है वहाँ पे शुरू कर। Just sit down. Go. Sit. Could I request all of you to be on mute, please, except the artist and the host. And of course, I mean, when you have to ask a question, you can unmute and ask. बेसिकली सबके पास पेन होगा। कौन सा पेन संभव जी? एक्चुअली मैं तो रोटिंग पेन यूज करता हूँ, लेकिन मार्कर भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन हो सकता है या ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप शुरू कीजिए, हम बताते हैं। तो आप शुरू करिए अपने स्टाइल में। सो फॉर एवरीवन, इफ यू हैव ए ब्लैक मार्कर और ए ब्लैक पेन, लेट्स स्टार्ट विद दैट। लेट्स सी व्हाट संभव जी इज डूइंग। तो संभव जी आप चालू कर रखिए। मैंने पेंटिंग थोड़ा घुमा लिया है। फ्रीज हो गया क्या? हाँ, ये फ्रीज है। Can we use the fine liners? Which liners? I'm sorry. Fine liners, you get it for the mandala arts and all. Can we use that? हाँ ठीक है। हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं। So what the point we should use? मैम मैं 0.6 यूज कर रहा हूँ। आपके पास कौन सा है? 0.6, 0.8 सब है मेरे पास। हाँ ठीक है, 0.6 यूज कर रहा हूँ अभी तो। Okay, thank you so much. Hello. I would like to know if I want to make this painting on a wall. Is there any preparation to be done on the wall, and how to finish it, or what kind of paints can I use for the wall?
Sure. I think that's a very good question. If I may request, could we take some of these questions towards a later part once we are able Yeah, to sure, finish the sure, main no model? worries. Yeah. Yeah, Because I I will mean that. wait till the end. Yes. Yeah, thank you. So we obviously encourage these kind of interaction. It's just that for everyone's interest, let's Sure, sure. focus on. Since you were okay taking questions, I thought I might ask this. I'll leave it for the last. Thank Thank you. you so much. Really appreciate it. So in the interest of time, right now we are just kind of taking questions which are related to what we are doing. And of course, towards the later part, we will take other questions and interactions with Sambhavji. And again, as I said, we have a longer version of the sessions, not just for doing this, but we also have for doing it on canvas or using the natural colors and even how to do it on the wall. So I would really encourage everyone to join this because obviously artists like Sambhavji do these sessions to promote, but at the same time, it's our responsibility also to participate in those and make sure that we are able to support them in proper way as well. तो अभी संभव जी जो आउटलाइन किया है हॉर्न्स और जो ट्री का जो स्ट्रक्चर दिया है आप अगर माइक्रोन पेन से कर रहे हैं तो उसको आउटलाइन कीजिए संभव जी आपका हाँ बीच में थोड़ा फ्रीज हो गया था अभी फिर से आ गया है so we are just doing an outline of the Have a closer close-up, please, because I want to see what is done in the leaves. Any detailing? Can you make a close-up, please? We have not done any detailing in the leaves as yet. We are just doing an outline. No, I can see some dashes. It is just an outline of the main thing that we had drawn earlier with the black. When we get closer to it, we certainly will zoom in. Just that he's not exactly tracing it on the pencil lines that he had made, because as he said, don't do it with a lot of dark shade. We'll need to rub it off in any case. समझ जी आज का थोड़ा सिग्नल का शायद प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में आपका फ्रीज हो जाता है वीडियो मैं जैसे वो शीट को घुमाता हूँ तो वो अच्छा एकदम रुक जाता है सिग्नल का स्ट्रेंथ तो यार ठीक दिख रहा है वैसे लेकिन जब आपकी साइड से लेकिन मेरे ख्याल से जब आप घुमा रहे हैं तब थोड़ा सा वो होगा हाँ वो जब भी मैं उसको ऐसा रब करता हूँ या हाथ ऐसा ले जाता हूँ उसके पास ना तो शायद उस वजह से रुक रहा है मैं उसको कोई पॉइंट कर रहा था बार बार देख रहा था कि वो क्या रहा है कोई नहीं अभी तो खैर आउटलाइन ही चल रहा है What is so special about the pen that he's using? How is it different from a fine liner? I'm not sure what you mean by the fine liner. So if you could elaborate a bit. He said he's using a Rotring pen, and this is a the Rotring pen और fine liner में क्या अंतर है सांबा जी? मैम अंतर कुछ नहीं क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि रोटरिंग पेन हम क्या करते हैं उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं ना क्योंकि वो पूरा ओपन नहीं हो जाता है फिर ओपन के बाद उसको साफ करके वापस रखते हैं दोबारा रीयूज कर सकते हैं You can refill कर सकते हैं क्या उसको? हाँ ओके Thank you, Samba ji.
संभव जी नीचे का कलर सूखा क्या अभी थोड़ा? हाँ सूख गया मेरा। So Padmini, yes, we definitely try to repeat the same thing in English as well. So if there's anything that we are missing out because of obviously some cross talks, then do let us know. We'll obviously keep on repeating the same thing in English. Just to recap for everyone who may have potentially joined late, we are doing the Gond art from the heart of India, Madhya Pradesh. Gond is one of the oldest tribal art. Dates back to maybe more than 1400 years. And today we are doing a motif of deer with a tree emerging out of the horns of the deer. So these are the cross lines that you could see on the horns in the one of the on the right horn, which is the central part of it, and the same pattern is being repeated. It's almost like not exactly a very sharp triangles, but kind of a gentle edges to the lines around the core, and then you see the detailing around that. तो संभव जी इसको थोड़ा सा समझाते जाइए जो कर रहे हैं. तो निको क्या हुआ निको? एक्चुअली हम कुछ कलर और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर रहे हैं. तो क्या होता है जैसे हम ब्लैक एंड व्हाइट यूज करते हैं उसमें हमको कुछ डिजाइन फिल करनी रहती है. तो हम कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में हम उसको पूरा टोटली ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं. कलर में भी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज कर ले. उससे क्या होता है कि थोड़ा मेजर होता है. जैसे हम लोग कलर गोंड आर्ट में कलर यूज करते हैं, मल्टी कलर यूज होता है, तो वो 3D इफेक्ट आता है एक तरीके का. तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट भी यूज कर रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट वो दिखना चाहिए कि प्रोपोर्शन क्या है. कि गोंड आर्ट का मेन रीजन ये होता है कि एक बेस तैयार करना. बेस तैयार करने के बाद उसमें हम एक फिगर तैयार करते हैं. उस फिगर में हम जो डिटेलिंग डालते हैं, गोंड आर्ट का सबसे मेन रीजन वही है कि उसमें डिटेलिंग डालना. तो डिटेल जो सबसे ज्यादा होता है डिपेंड करता है कि हाँ डिटेल डल रहा है, उस पर क्या कलर हो रहा है, मल्टी कलर्स हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट है. लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में भी बहुत सारे डिटेलिंग होती है कि हाँ उसमें कैसे कैसे हम डिटेल डाल सकते हैं. बहुत सारे ऐसे डिटेल हैं. सारे कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, सबके अलग अलग हैं, पैटर्न्स हैं, वो कैसा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं. तो Sure, I'll repeat it for everyone. And what Sambhavji is saying that the detailing can be done on the colored part of it, and of course using the black and white patterns as well. Yeah. Right now we are the way we are doing it is we have obviously the central motif of deer, which is on the color, and then we will do detailing on that. On the top part, we are primarily going to use the detailing with the detailing pattern with the black and white. There was some discussion on the rotary pen and the micron pen. Fundamentally, in terms of the output, you will not see a lot of difference. I mean, there's obviously some technical difference in between the way these different kind of pens work. There's a kind of a small ball at the front end of it, which you can keep on the cartridge. You can keep on refilling. Yeah. What we have done in terms of detailing is in the central horn. We have kind of did the cross lines, and within those cross lines, we have kind of done the small triangles. And I hope each one of you are able to see it clearly. Some of you were not able to see it in a zoomed out way. So now it's already zoomed in, so we can follow the pattern as well. Hi, do we use the same thickness of the marker for the detailing as well, or we can use a thinner one? Sambhavji से confirm कर लेते हैं. As far as I know, I think he's using the same marker. Sambhavji, आपने marker change किया कि 0.6 ही वो चल रहा है अभी आपका? Same marker he is using. See. Sambhavji आप mute में हैं शायद. संभव भाई. हेलो संभव जी आप शायद म्यूट पे चले गए हैं गलती से. नहीं कोई आ गया.
संभव भाई ये आपने सेम मार्कर ही आप यूज कर रहे हो सेम ना? मार्कर सेम, वो 0.6 ही है, वो यूज कर रहा हूँ मैं। एक मतलब एक बेसिक बताना चाहता कि हमने अगर ये प्रोपोर्शन अगर यहाँ से पूरा किया तो हम बेसिकली हम जितने भी हॉर्न्स हैं सब में वही ट्राई करेंगे और बनाएंगे वही। अब जैसे हमने कलर और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बताया है, अब उस तरीके से हम क्या करते हैं, जब हम लीव्स भी बनाएंगे इसके, तो हम लीव्स में भी फिर यहीं पे हम रखते हैं कि हमको एक बेसिक इतना ध्यान रखना है, हम ब्लैक एंड व्हाइट ही यूज करेंगे, लेकिन ये इसका जो प्रोपोर्शन है, हम जब उसके हॉर्न्स निकालते हैं कितना गैप है, उस हिसाब से पूरे प्रोपोर्शन में हमको उसको फिल करते हुए चलना है। तो उसको कैसे रखना है, क्या रखना है, हमको उससे भी ये ध्यान रखना है कि हम इतने में रखेंगे। और अभी आपने ये ऊपर बिटवीन टू हॉर्न्स एक लीफ बनाई है जी, तो उसका एक थोड़ा सा दिखा देते हैं। एक हाँ, क्योंकि पैटर्न वो सेम रहता है। सो फॉर एवरीवन बिटवीन द स्मॉल सबके लिए। हॉर्न्स, या between the small horns you will draw a leaf and then obviously draw a line in between that and draw the straight lines around that. So it's the same pattern which is repeated again and again and again. So it is important that you see one of the pattern properly and then it can be repeated. Throughout all the branches this is need to be followed. समझो एक जगह और बना के दिखा दीजिए कहीं बीच में आजू बाजू। So this way it is almost similar to all the branches. Of course we are going to share the final pic, लेकिन अभी आप लोग जो है जितना देख रहे हैं, जितना सीख पा रहे हैं with the timeline, आप लोग lot of detailing part is still there. संभव भाई मेरे ख्याल से अभी नीचे वाला जो है उसमें काफी काम बचा हुआ है। So ये वाला पार्ट करने के बाद में हाँ ठीक है, हम लोग ने मैं इसमें बेसिक आपको बेसिक वो बताऊंगा कि हमको एक्चुअली इसमें करना क्या है। कॉमन डिजाइन है, सभी यूज करते हैं। हाँ, थोड़ा सा जूम आउट कीजिए। So for everyone's reference, see, I think it's the same pattern which is repeated for detailing the horns and the leaves that you have in the top part. Now we will get back to it soon, but right now, in the interest of time, what we're trying to do is that we want to see how the detailing within the main motif of the deer and see that what's the pattern that we need to make. So Sambhav ji, अगर ये नीचे का कलर सूख गया है तो थोड़ा यहाँ पे भी डिटेलिंग का पैटर्न देख लेते हैं, जिससे कि अगर टाइम कम पड़ा तो बाकी लोग के साथ हम पिक शेयर कर सकते हैं बाद में। क्या होता है, हाँ ठीक है, क्या होता है जैसे हम जैसे कलर में हम ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने स्केच किया था तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शन था इसके पैर का, हम इसको यहाँ डिवाइड करते हैं। Please look very carefully because we had sketched it with the pencil. Please do have a look on a screen. It's a very important part. ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है जब हम भी कोई भी पार्ट हम यूज करते हैं पेंटिंग का। जी स्क्रीन आपका फ्रीज है अभी इससे। कल कनेक्शन लगवा लूं क्या नया वाला? देखते हैं, शायद कुछ उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। Let's keep going. I think we can still follow. ठीक है अभी। So as we had seen earlier, we had obviously the outline with the pencil and even in the inner part of the body, so which we are now outlining with this black rotary pen. ये जल्दी कर सकते हैं संभव जी। ओके। क्योंकि इसके अंदर का डिटेलिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, ये तो सिंपल पार्ट है।
Please look at the small concentric circles, the way he is drawing it for the detailing in the upper part. So you start from one corner of the mouth. Can we zoom in, please? Yes, thank you. So we start with one corner, draw 3 concentric circles, then the 3 next to it, and the same pattern just basically keeps on getting repeated. Yeah. ध्यान रखना आपका जो साइज है वो जो भी सर्कल्स हैं वो बिल्कुल एक सिमिलर रहे, ज्यादा बड़े नहीं. Yeah, make sure that all the lines should be equally proportionate. These all circle. अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो it will not be looking that good. तो आप लोग ध्यान रखिएगा. All of you, please take a note. ये जो लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग, उसका प्रोपोर्शन लाइन का जो डिस्टेंस है उसके बीच का जो है वो एक साथ. So now this entire painting will evolve into something far more beautiful as you would keep on detailing it. Yeah. With the same repetitive pattern, but obviously there is a symmetry, there is a sense of proportion, and that's what actually makes it look so colorful, vibrant, and beautiful. तो while we are doing it, संभव जी, एक सवाल आ रहा है कि ये महुआ का पेड़ है कि कौन सा पेड़ नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं गोंद आर्ट में? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है. ज्यादातर जब हम बनाते हैं तो जो ये जो लीव्स है ना, एक्चुअली महुए के ही होते हैं, ऐसे गोल गोल लीव्स जो बनाए हमने. तो सबसे ज्यादा अगर बनता है तो महुआ का ही पत्ती बनाई जाती है हमेशा पेंटिंग पे. So the people who are familiar with this part of India, in fact, I was born and brought up in Madhya Pradesh, and they would be very familiar with the mahua tree. It is predominantly, obviously, in this part of the India, you actually get a lot of mahua tree. So that's what the Gond artists typically use it as their source of inspiration. भले कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है, मेरी मम्मी खुद मुझसे बोलती थी क्योंकि हमने शुरू में जो भी स्टार्ट किया है पेंटिंग करते थे, तो महुआ हम पूजा करते हैं उसकी, तो सबसे अगर हर पेड़ का एक एक पत्ता अलग अलग होता है, लेकिन अगर इस प्रोपोर्शन में अगर पत्ता बन रहा है तो वो महुआ का ही होगा. अच्छा. Can I ask a question? Yes, sure. What about the background? So background, see, there are two, of course, there are different variants and different choices. One of the main thing is that we kind of keep the background empty. That's one way to do that. Yeah. In other variants, sometimes you can color the background in one primary color if you want to, right? So like maybe you can choose that I would want to do it in say blue or green, depending on the way you have done the primary and the secondary motif. Sometimes you also do this kind of a detailing of the pattern on the background also. But of course, the patterns that you would choose has to be complementary to the main pattern. So there are different variants, there are different choices that you can get. So there's a lot of creativity and the personal elements that you can bring in. So there's some method to it. There's some, what I would say, the source of inspiration that the Gond art has. But in the end, I mean, every artist, including yourself, is unique. So you also bring in your perspective as you do. तो आज संभव जी यही पूरा पैटर्न करेंगे पूरे डियर में. अच्छा.
Yes, तो someone फिर has- बट बस इसी का ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा हमको ना इसको वी कैन आई मीन थोड़ा सा अलग जगह पे आप दिखा दीजिए हाउ इट गोस, लाइक आगे से कैसा रहेगा, पैर से कैसा रहेगा, इस तरफ से कैसा रहेगा, थोड़ा करके फिर छोड़ देते हैं। ओके। एक्चुअली जब हम ये यूज कर रहे हैं तो जैसा दिख रही, मैं यहाँ से इसको कर्व करते हुए ला रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इस वाले प्रोपोर्शन को, सब फ्रंट ऑफ प्रोपोर्शन है, इसको हम सबसे पहले आगे लेते हैं यहाँ से। Very good, very good. इसका टर्न इस तरफ हो जाएगा, हमको सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको पीछे की तरफ ले जाना है। ओके, तो वेरी गुड। सब लोग ध्यान से देखिए। संभव है पीछे की तरफ से एक बार, वहां से भी एक बार दिखा दीजिए, सो दैट एवरीबडी विल हैव एन आइडिया कि वो यहाँ से अगर पीछे से शुरू कर रहे हैं तो वहां से कैसा जाएगा। हेलो। हेलो हेलो, हाँ, मैं पूछ सकती हूँ एक सवाल? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, या मुझे इनसे पूछना था कि इनकी माँ मतलब क्या एज तक ये पेंटिंग करते थे, क्योंकि काफी डिटेल वर्क है तो आंखों को तो शायद तकलीफ होती होगी, या फिर मतलब कैसा होता है, उनको आदत थी इसलिए कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, या क्या एज तक ये पेंटिंग कर सकते हैं? नियति जी कुछ सवाल कर रही हैं संभव भाई आपकी मदर के बारे में कि वो कब तक पेंटिंग करती थी। उन्होंने अभी लास्ट 6 मंथ से उन्होंने काम शायद नहीं किया पेंटिंग का। उनको कैंसर दो बार चश्मा उनका चेंज हुआ, उनका दोनों बार उनके ग्लासेस चेंज हुए हैं। उनकी डिटेल में आपको दिखाऊंगा, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बीच में आपको दिखाऊंगा मैं कि उनका कैसा काम था, क्या था। So, I think what Sambhavji is saying is that, I mean, she was doing the painting until the very last years of her life. And of course, towards the end of the session, when we get to it, we can also show some of her work as well. देखिए इस पार्ट में आपने देखा पैर के पास में हम लोग उस पैटर्न को आगे तक लेके जाएंगे। सेम फॉलो दिस पैटर्न टू दी, आई मीन उनका जो डियर का ऊपर वाला पार्ट है वहां तक लेके जाएंगे। समझ भाई, अगर हम लोग को वहां स्टार्ट करना है ऊपर के वाले पार्ट में, है ना, कहाँ पर, पीठ के आसपास का वाला जो पार्ट है वो भी आप एक बार दिखा दो। तो समझ अराउंड 20 मिनट बचे हैं। तो जो मेन जो है ना कि लेग्स में कैसा पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन अगर किस तरह से शुरुआत करनी है, कहाँ से करनी है बैक साइड में, तो वो थोड़ा सा लोगों को आसान हो जाएगा। हमको शुरुआत नहीं करनी है इसमें, एक प्रोपोर्शन जो मैं बना रहा हूँ, हर एंगल से ये वाला, हाँ ये वाला जो हिस्सा है, अब यहाँ से इसको बढ़ाते चलेंगे तो अब क्या होगा, जब यहाँ से सर्कल ऐसा घूमता हुआ आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो नीचे का है ये यहाँ तक कंटिन्यूसली जाएगा। यहाँ जब बढ़ेगा तो ये हमने जो यहाँ पे मैंने जो डाइवर्शन किया है, इसका मेन रीजन ये था कि हम लोग पहले अंदर करना है, फिर ऊपर से हम यहाँ तक लाके इसको स्टॉप करेंगे, लेकिन यहाँ से हम अंदर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ को फ्रीज हो गया था, तो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे इवॉल्व होता है। ठीक है। संभव है आपका वीडियो अभी जो है फ्रीज है, हाँ ठीक चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना? Yeah, fine. Okay.
So we are on purpose kind of staying a bit quiet so that we can focus on the work that it is evolving. संभव भाई, ये वाला पार्ट तो हो गया है अभी, है ना? आप एक काम करो, ये जो नीचे पैर से कैसे स्टार्ट होगा वो एक बार बताओ, और जो पीठ वाला जो पार्ट है, बैक साइड, वो जो पीछे वाला है, यहाँ से ये बैक वाला पे हाँ, एक पैर से कैसे स्टार्ट होगा वो भी बता दो, और पूछ के वहां से कैसे लेके आएंगे पीछे वाला पार्ट, एक वो बता दो। यहाँ से वो तो बना ही दो आप, वो तो बना ही दो आप, टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, तो चारों पैर में जो है स्टार्ट वहीं से करेंगे हम, यहाँ नीचे से। ओके, ये इसमें भी दिखा दो एक बार आप, हल्का सा नीचे, और छोड़ दो वाला, वो वाला छोड़ दो आप, दूसरे वाले में दिखा दो आप, उसमें भी दिखा दो, हाँ, सो दैट वी विल हैव ए बेटर आइडिया कि कहाँ से कैसे करेंगे हम लोग। ओके, दिस वे, ओके। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से ये पूंछ की तरफ चला जाएगा, यहाँ तक, यहाँ पे लास्ट में आके खत्म हो जाएगा। So in the legs, we start from one of the corner of the leg and again repeat the same pattern. संभव जी, एक सवाल है कि गोंद आर्ट में हम हमेशा आउटलाइन ब्लैक कलर से करते हैं कि आज दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं? नहीं, आउटलाइन तो बहुत कम ही यूज होता है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग जब हम यूज करते हैं, कलर्ड में ब्लैक एंड व्हाइट करना होता है, तो क्या होता है कि हम एक सिमिलर कलर यूज करते हैं ना, बिल्कुल कि हाँ कंटिन्यूअसली एक कलर चल रहा है, तो हमको आउटलाइन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमको प्रोपोर्शन अलग अलग दिखाना है, उसका लेग अलग है, उसका जो उसका उसकी टेल है, उसका राइट पैर है, उसका लेफ्ट पैर है, उसका फ्रंट का राइट है, फ्रंट का लेफ्ट है, तो हर चीज को दिखाने के लिए अलग अलग, इसलिए हम उसमें आउटलाइन यूज करते हैं। नहीं तो बेसिकली क्या होता है, अगर कलर यूज करते हैं तो फ्रंट के दोनों लेग अलग करेंगे, पीछे के दोनों लेग अलग करेंगे, उसका हेड अलग होगा, उसके टेल अलग होगी, ऐसा, तो उसमें क्या होता है, हर चीज एक डाइवर्शन में नजर आता है कि हाँ सब कुछ अलग अलग है। जी जी जी, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही ऐसा इशू होता है कि हमको उसमें एक आउटलाइन की जरूरत पड़ती है। ओके, सांबा जी, ये डिटेलिंग किसी भी रंग से की जा सकती है कि काले से ही करना जरूरी होता है? नहीं मैम, एक्चुअली हम जब ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग करते हैं तो हमको ब्लैक कलर यूज करना है, बाकी तो डिटेलिंग आप वो मल्टी कलर्स हैं आपके पास, देन और बहुत सारे कलर हैं, आप किसी चीज कोई सा भी कलर आप यूज कर सकते हैं, बस आपको बेसिक ध्यान रखना पड़ता है कि आपने क्या कलर नीचे यूज किया, क्या कलर आपको ऊपर यूज करना है, बस। so we will show a lot of these samples towards the later part. I think in the interest of थैंक यू, time. सांबा Yeah, जी। yeah. So we'll show a lot of these samples. I think the main objective of this session is to kind of showcase and demonstrate how it is done. We'll show some of the samples and we'll also show you the detailed workshop that you can join. Yeah? Where all these possible variants, all these things, we will be very, very happy to take up and discuss in more details. संभव भाई, उसके डियर के जो पैर का वो है, नीचे वाला पार्ट जो है, वहां पर हम लोग कैसे करना, वो भी एक बार नहीं, एक्चुअली इसको पूरा इसको ब्लैक करते हैं, पूरा फिल करना रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, so that will be going to be entirely this is be painted with black. Okay, ठीक है।
So for everyone's different, the hooves have to be filled in the black color. And since we have around 10 more minutes, we will try to complete as many parts of it as possible. And of course, we'll share the detailed pic later on. I had a question. ये जो deer के हमने 12 सिंघा बनाया, the tree kind of structure that we made. भाई आपका freeze हो गया। So उसमें जो हम लोगों ने ये branches बनाए हैं, वो branches के अंदर ये वाला zigzag pattern नहीं करना है क्या? If it is possible, like जहाँ पे thin है, probably we can omit, लेकिन some kind of illusion of the same zigzag pattern नहीं करना है क्या? I tell you, up to the extent wherever, whatever Possible. extent you can make it possible, it is fine. Okay. Otherwise, जो है संभव भाई, सुनिए ना, हेलो, एक छोटी ब्रांच में फटाफट जो आपने zigzag pattern बनाया ना, ये राइट वाली, उसमें बना के बता दो कैसे बनेगा वो। और एक और क्वेश्चन, जब हम ये लीफ बना रहे हैं, बीच में जो भी एक लीफ स्ट्रक्चर बनाया हमने दो सब ब्रांचेस के बीच में, वो यूजुअली दोनों सब ब्रांचेस के इक्वल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? मैंने स्मॉल ट्राई किया, इट काइंड ऑफ गॉट लॉस्ट, तो मे बी देयर इज अ लॉजिक टू इट। वो यूजुअली बड़ा होना चाहिए दोनों सब ब्रांचेस से, सो दैट इट पॉप्स आउट। आपका जो ब्रांचेस जो आपने बनाया उस पे डिपेंड करता है कि आपने ब्रांचेस कितने बड़े बनाए हैं। ओके, कि आपने छोटा बनाया तो आपको छोटी लीव्स बनानी है, अगर बड़ा बनाया तो आपको बड़ा ही बनानी है, क्योंकि आपको फिल करना। अगर आपने बड़े ब्रांचेस के बीच में छोटी लीव्स बनाई तो क्या होता है, आपको बहुत सारा स्पेस खाली नजर आता है उसमें। नहीं सॉरी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे प्रोपोर्शनल में तो बनाना है, ठीक है, लेकिन जैसे जो सब ब्रांचेस, मतलब मेन ब्रांच के बगल में जो आपने छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई है, ठीक है, तो ये ब्रांच के बगल में जब आपके दो ब्रांचेस के बीच में जब आपने लीफ बनाया, तो ये दोनों ब्रांचेस के इक्वल बनाया या उससे हमेशा बड़ा बनाना है? आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन क्लियरली। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है इट इज लिटिल, मैं दोबारा, हाँ ये देखो, ये जो अभी आपने बनाया ना, ये दोनों सब ब्रांचेस, छोटे ब्रांचेस के बीच में, ये आपको ब्रांच का जो लेंथ, सब ब्रांच छोटा वाला ब्रांच का जो लेंथ है उससे बड़ा निकल करके आना है क्या, या उन दोनों की लेंथ के अंदर ही रहना है? नहीं, उतना ही रखिए, उतना ही रहना है, इक्वल रहना है, नीदर लेस, मतलब कम भी नहीं रहना है और ज्यादा भी नहीं रहना है। अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। जस्ट आपका क्वेश्चन था कि छोटी ब्रांचेस में कैसा दिखेगा, तो आपको हाँ, आई वाज पेंटिंग और मेरे को इमेजिनेशन से आई वाज नॉट श्योर कि मैं गलत कर रही हूँ या सही। थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। ना सर ये पूछो ना, लीव्स को ग्रीन करना है कि ब्लैक ही करेंगे? आज दिखाने के लिए बोले ब्लैक करिए, बट व्हेन वी आर डूइंग द पेंटिंग शुड द लीव्स बी डन ग्रीन? यार, yeah, of course you can do that. There are so many ways. I mean, there are. I would, if I may, Manish, if I may, we will show a lot of samples of this, but I mean, I would really request everyone to be a bit patient so that we can finish as much as it is possible. We will show a lot of samples of it right after maybe 5 to 10 minutes, where all these possible variants are there. And I'm sure everyone appreciates that in 1.5 hours, we can do only as much. But yes, you can do the leaves in different colors. You can do a lot of detailing in the background. Everything is possible. It's really a function of the time that one spends and obviously the patience. अभी जो बना रहे, ईयर्स बना रहे कि लीफ बना रहे? ईयर्स बना रहे कि लीफ बना रहे? ईयर्स में I can see the ear. I mean, if anybody is seeing it to the ear ही होगा, हाँ, ear. संभव जी ने बोला ना, ears. What design is done in the ear? Can't see that. Can you see it now? These are just kind of a Yeah, curved lines. thank you. Yeah? Yes. Lovely. संभव जी अभी, हाँ, थोड़ा सा आप उसमें आंख बना के उसको जान दे रहे हैं. So he is drawing the eyes of the deer. No, white में ही होगा. I think that looks good, and I think any other color probably will not be as nice if you're using for the eyes. आग वाले सबसे बेसिक कलर मेन व्हाइट ही होता है, सबसे पहले हम उसका बेस व्हाइट ही रखते हैं, उसके बाद हम बाकी प्रोपोर्शन करते हैं। लेकिन
पूरी पेंटिंग खत्म होने के बाद ही हम आँख बनाते हैं। So yes, I mean, please use the white color. That's a base that one would use for the eyes in general. And typically we draw the eyes in the end for a very simple reason. It gives the life to the painting. In almost all arts, traditional art, that's the main concept that is followed. तो संभव जी, अभी इट्स बाकी तो काफी रेपिटेटिव पैटर्न है, लीव्स में, ऊपर ब्रांचेस और फॉन्स में, और बॉडी में भी सेम पैटर्न है। कोई एक ऐसा पार्ट जो बचा है कि जहाँ पे रेपिटेटिव पैटर्न नहीं है और हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी 4-5 मिनट बाकी हैं, तो हम चाहते हैं कि No, I don't think almost it is all part being covered. जितने भी ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं ऐसे, क्योंकि बट ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कीजिए, थोड़ा सा Will जूम the आउट। tail have the same pattern, same detail? जी thank you. आप हाँ ठीक है संभव भाई, लगे तो टेल में भी हल्का सा बना के दिखा दो। मनीष भाई, मुझे यहाँ से यहाँ तक करने में थोड़ा ना चलेगा, चलो कोई And नहीं। the small branches, like the very small ones. It's exactly already been shown, no? आप देखिए तो यहाँ वाला जो है, ये जो जस्ट इमीडिएटली जो फर्स्ट जो हॉर्न है निकला हुआ है, उसमें देखिए आप स्मॉल ब्रांचेस में कैसा रहेगा संभव भाई, वो भी दिखा दो आप, एकदम कॉर्नर में, एक्सट्रीम कॉर्नर में, किसी भी एक जगह पे दिखा दो जरा। एक मिनट इसको थोड़ा रब कर लूं, क्लियरली दिखा बस एंड में कैसा रहेगा वो पैटर्न। ठीक, जस्ट इट विल बी लाइक वही सेम पैटर्न। हाँ ये नीचे की तरफ वाला दिखा दो आप। हाँ ये बस इसमें दिखा दो आप। क्या होता है कि हम इसकी मेन ब्रांच पहले यूज करते हैं। मनीष जी, क्लास में तो बहुत कुछ सिखाएंगे ना, ये ऐसे ही सिखाएंगे क्लास में ना क्या होता है कि 5 घंटे की क्लास होती है मिनिमम, और डेली 1.25 घंटे का क्लास होता है, तो उसमें थोड़ा काफी आसानी से धीरे धीरे डेली उसमें ब्रेक करके करते हैं, और काफी कॉम्प्लेक्स वर्क भी हो पाता है। नीना जी आप तो सवाल मत करो, आपको सब कुछ पता है। ये देखो मेरा डियर बन गया, मेरा डियर भी बन गया। क्या बात है, आपकी स्पीड इतनी अच्छी है, फिर देखिए आप तो। नीना जी आपको सब पता है, तो आप तो सबको मेरे ख्याल से बताने के लिए सवाल पूछ रहे थे। I want to know more detail, whole coloring and all. This I know. Your classes are excellent. That I know. आप लोगों ने देखा ये पैटर्न जो है, इट इज जस्ट लाइक वो थोड़ा सा जो है, जो वहां पे नैरो है हो जाएगा, थोड़ा सा जो लीव्स और यहाँ वाला जो ब्रांचेस जो हैं जैसे वो होती हैं, और जिगजैग करके थोड़ा सा बनाना है। Thanks. तो संभव भाई अभी मेरे ख्याल से एक बार आप पूरा उसको एक बार पूरा इसमें मनीष थोड़ा सा आईज में अगर डिटेलिंग करना है तो करा देते हैं। हाँ 2 मिनट, मुझे बस थोड़ा सा वो देख रहा हूँ सूखा है कि नहीं सूखा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा गीला है ना। हाँ ठीक। So in the meanwhile, while we are waiting, see the last thing that we will do is to just detail the eyes. Yeah. In the meanwhile, see, while we are waiting for the colors to dry up, if any of you have small questions on any other part, please ask, because after that I would like to show the different paintings that Sambhavji has done. He would like to show what his mom. I wanted to ask something कि ट्रेडिशनली क्या होता है कि बेस व्हाइट ही छोड़ देते हैं कि पहले उस पे कुछ लाइट कलर करते हैं? करना चाहते हैं तो अपने बोले कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता है? संभव जी बताइए ट्रेडिशनली क्या होता है? बेस व्हाइट ही छोड़ते हैं कि कैसा करते हैं? बेस एक्चुअली व्हाइट नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है घर की बॉल तैयार होती थी, क्योंकि इसको हम भित्ति चित्र बोलते हैं। तो जब हम पेंट करते थे तो क्या होता था, पहले तो उन्होंने दीवार पूरी लिपाई करते थे मट्टी से,
मट्टी के बाद फिर उस पे गोबर से या फिर कोई भी एक एग्जैक्ट जो भी नेचुरल कलर जो मट्टी का होता है वो यूज करते हैं। फिर उसको यूज करने के बाद उस पे कुछ पैटर्न जैसे ये जैसे मैंने सेमी सर्कल्स बनाए हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स, ये इसको अगर मैं यूं करूं तो वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चलते हैं ऐसे दीवार पे पूरे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसमें जब बनने आए उसके बाद उसके ऊपर से फिर कुछ फिगर्स बनाते हैं, कुछ बर्ड्स बनाएंगे या डियर्स बनाएंगे। तो पहले जो बनाते थे नहीं, मैं बेस कलर की बात करती हूँ, मतलब बेस कलर लाइट ब्राउन कैसे कुछ होता है ना, व्हाइट नहीं नॉर्मली होता है ना, ऐसे बोल रही हूँ। मैम व्हाइट नॉर्मली नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई नहीं नहीं होता है है। कि हमको व्हाइट ही लगना है। अच्छा अच्छा, ओके। So, Nashra ji, basically, as we are discussing earlier, that in the most of these tribal arts, especially if it is a wall painting, usually you will do it with a base of the sand or the mitti, right? Or तो ये some मतलब गोंदराज ज्यादा करके दीवार पे ही होता था क्या पहले? शुरुआत, most of these tribal arts start that way, right? I mean, be it Warli or be it Gond, Okay, most of this start that way. Okay. Thank you. Mrs. Padma, I'm not able to see. The screen is completely blank. I do not know if only I have a problem. No, you need to check with your. I We think why can don't you see. just swipe? We all Everyone can can see. see. Everybody is able to see that. We have some network issue. Please. Very nice. बहुत बढ़िया संभव है, एक नंबर। So for everyone's reference, I think we will anyway send the completed picture of this. For the moment, since we have done most part this sketching, the coloring, and the repetitive patterns that have to be used, I will recap very quickly before I would request Sambhavji to switch on his camera towards himself. The deer. Ball लेके आ, ball. Where's the ball? Get the ball. Okay, so I'll request everyone to be on mute except me and Sambhavji for the minute. So we basically did the main part of the deer body. It was done in the golden yellow color. If you do not have the golden yellow color, mix a little bit of orange to yellow, you will get that shade. Then, of course, we drew the horns, which are basically done as a form of a tree. So there is a two main horns and many secondary and the tertiary horns which emerge from it, which basically represents the branches of the tree. Yeah. Within each of these smaller branches, you एक last question पूछूं क्या सर? अभी पूछेंगे ना इसके बाद, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं रिकैप कर दूं सबके लिए, है ना? And then we have the leaves which are in between those small mini branches. We used different patterns as you would see for the main body and for detailing the horns. Yeah? The way you start detailing in the main body, one very important tip is that obviously you are using the 3 concentric circles. But if you are starting from the, say like for the legs, you should start from the bottom. And then from the side of the body, start from that side. Because it will retain that sense of proportion and the flow and the symmetry. So this is what I wanted to recap for everyone's benefit. Now, of course, before we, I do want to have everyone talk to Sambhavji as well, but if there is one last question, let's. हाँ, ये वो ears का पूछो ना सर, ears का कलर कौन सा करना है? Ears का आप black and white में रहने दीजिए, ऊपर का पार्ट आज हमने डिसाइड किया था कि black and white में ही रखेंगे। अच्छा, ओके। नहीं, हम कर सकते हैं कि नहीं ईयर के बॉडी का कलर? हाँ, वो पूछ रही हूँ जी। ये तो पता नहीं चलेगा ना, बाद में झाड़ बनने के बाद झाड़ ही दिखेगा। नहीं, आप देखिए, वो आपकी क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली अगर आप लीफ को चाहें तो उसको ग्रीन कर दीजिए, उसके बाद डिटेलिंग कीजिए, है ना? अच्छा, ओके। तो वो आप चॉइस कर सकते हैं। जी। ठीक है संभव भाई, तो थोड़ा अपनी तरफ कैमरा लीजिए, अभी तो आपने इतनी 1.5 घंटे में काफी जल्दी लोगों को काफी सारी रिचनेस दिखा दी, एंड थोड़ा सा आप अपनी तरफ कैमरा लीजिए और बाकी मैं सबको
इनवाइट करूंगा अगर उनको आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं कि सिंपली आप लोग को हम इनवाइट करेंगे कि संभव जी अगले हफ्ते से वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, and we will really invite all of you to join this workshop. This is one of the things that he had done. We regularly run these workshops from Monday onwards. We are starting this 28 to 31st, 4 days, every day 1 hour 15 minutes from 4 p.m. to 5:15 p.m. And as Neeraj was asking, and then many of you obviously join our regular workshops, they know that how we slowly evolve this over the 4 to 5 days. And now you can see that there are so many colors, there are so many patterns, right, that can be done within the main motif of in this. The main motif is the tree, and then the secondary motifs are different, right? So it becomes a far more colorful thing. Here you would see that the leaves are done in the pink color. Right, the tree is done in some shade of pink, green, and blue. So it becomes a much richer painting that way, and obviously it takes time to do these kind of things. So here I would stop, and you can obviously get in touch with us. You obviously have our contact numbers. We have your contact details. We will also send you links of this. So संभव जी, अभी थोड़ा आपसे बातचीत हो जाए। तो ये है संभव श्याम जी, इनके Yes, very beautiful. Thanks for sharing your experience and the tips and techniques how to do this. Thank you very much. बहुत लोग संभव भाई आपको जानने वाले भी हैं। Many of the people know you. काफी टाइम के बीच के गैप में आपके दोबारा आप आए हैं। थोड़ा बताइए अपने बारे में भी। क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हमेशा तो बताता था, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पेंटिंग में सीख रहा हूँ आज से नहीं, मैं बचपन से ही सीख रहा हूँ। 8 साल की उम्र से ही पेंटिंग सीख रहा था, लेकिन जब से मैं अपने आप में खुद इंडिविजुअली जब से मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया और जब से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं 12 साल की उम्र से उस काम को कर रहा हूँ। आज 24 साल हो गए काम करते करते मुझे, और हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ ही रही है, और वही मेरी गुरु थी, और वो उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, और वो मुझे हमेशा आगे लेके गई है। आज उनकी कमी थोड़ा लगता है मुझे कि आज उनकी कमी है, लेकिन उनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। आज सब मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और उनसे ही मैंने जो कुछ सीखा है, सब कुछ उनसे ही सीखा है। और उनका ही कहना था, उनके मुंह से, मेरे फादर के मुंह से, मेरे मामा हैं, जितने लोग, जब गोंड आर्ट स्टार्ट हुआ उस वक्त से, तो उनके बीच हमेशा रहा। और मुझे उन्हें वो उनसे मैं हमेशा सीखता था, और सब लोगों के मुंह से मुझे पता है। और क्योंकि मैंने वो वक्त भी देखा है, उस वक्त जब मेरे दादाजी जिंदा थे, जब हमने सीखा, स्वर्गीय जयंकर सिंह श्याम जी, मम्मी के एक्चुअल वो मामा थे, मेरे फादर के चाचा थे। और एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो उस तरीके से फ्रेंड सर्कल में थे ये सब। ज्यादा उम्र नहीं थी इनकी, सब फ्रेंड सर्कल 1-2 साल ऊपर नीचे, सब ऊपर छोटे बड़े हैं। लेकिन जब बेसिक जब वहां से पाटन से आने की बात आई, तो जे स्वामीनाथन जी जो थे, वो मेरे पापा जी के गुरु थे और हमारे दादाजी के गुरु थे। उनको संस्कृति विभाग ने कहा, यहाँ से जाओ आप, कुछ कल्चर्स के बारे में पता करो, कल्चर क्या है, कहाँ पे कैसा है। क्योंकि बाकी लोग उस वक्त जानते थे मॉडर्न आर्ट क्या होता है, क्या होता है, लेकिन जब गोंड आर्ट की बारी आई, तो उनको नहीं पता था कि गोंड आर्ट में कुछ है। वो सिर्फ ये देखने गए थे, उनको ये पता था कि कुछ बांस के वर्क होते हैं, कुछ जूट से काम करते हैं कुछ लोग। तो आप जाओ उस एरिया में, जाओ डिंडोरी जाओ, क्योंकि डिंडोरी सिर्फ डिंडोरी नहीं था, मंडला था, तो मंडला जाते थे। मंडला डिस्ट्रिक्ट था पूरा का पूरा, तो मंडला चले जाते थे वो। तो मंडला जाना है उनको, वो देख के आना है। तो मंडला में उनको पता चला, बाद में डिंडोरी भी है, डिंडोरी में कुछ गए। तो फिर जब वो स्वामीनाथन जी जब गए यहाँ से, तो मेरे दादाजी और मेरे फादर कुछ दीवार पे पेंटिंग कर रहे थे वो,
उन्होंने देखा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला हम पेंटिंग बना रहे हैं। ये कैसी पेंटिंग है, तो बोलते हैं ये पेंटिंग है। और बोलते ये क्या बना रहे हो, तो बोला हमने जो हम देखते हैं नेचर, जो नेचर था उस वक्त हमारे यहाँ जंगल था पूरा का पूरा, तो जो नेचर में दिखे थे वो भालू बना रहे थे, वहाँ कुछ डियर्स है, बारहसिंगा बहुत सारे थे उस वक्त, आज भी बनाते हैं। पूरे गोंड आर्ट सबसे ज्यादा फेमस अगर ट्री ऑफ लाइफ के अगर पीछे कोई बनाता है तो मेरे पापा थे जो बारहसिंगा बनाते थे हमेशा। क्यों? क्योंकि वो देखते थे कि एक बोलते थे एक जानवर के सर में पूरा पेड़ उगा हुआ है, तो एक मतलब एक जानवर में मतलब पूरा पेड़ कैसे हो सकता है। फिर उनका नजरिया था देखने का, वो दादाजी थे, तो दादाजी जब पेंटिंग बनाते थे तो वो कुछ मिथिकल्स में पेंटिंग बनाते थे, कुछ स्टोरीज होती थी, जैसे कुछ भूत हो गए, कुछ प्रेत है, और घर की पूजा पाठ करना है तो कुछ देवी देवता है, उन पे बनाते थे पेंटिंग्स वो पापा थे। तो लेकिन वो मिक्स करते थे कि हम जाते हैं तो कुछ कहानियां ऐसे मिथक हैं कि वो पेड़ में कुछ चुड़ैल रहती है, तो ऐसा है तो वैसा, तो उसको वो एक उस पे उकेरते थे, दीवार पे काम करते थे। तो फिर जब कुछ नेचर की बात आई तो फिर पापा जो थे हमारे, तो पापा बेसिकली वो डेयरी डेयर बनाते थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ अगला और ढूंढना चाहा, नहीं यार और भी कुछ हो सकता, अगर इनके गांव गए हैं तो हम देखते हैं कौन है। तो उसमें फर्स्ट लेडी थी मेरी मॉम, कलावती श्याम जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये लेडीज क्या बना रही है, तो उन्होंने बोला वो बर्ड्स बनाती थी, उनके आज भी बर्ड्स सबसे ज्यादा मतलब ट्री और बर्ड्स, तो सबसे वो बोलती थी नहीं मुझे बुरा बुरा लगता है ये सब देखना, ये मतलब ये भूत प्रेत बनाते हैं, ये ऐसे डरावना सा एक बोलता है कोई हिरन के पेड़ में, कभी हिरन के सर में किसी के वो झाड़ उग सकता है क्या, क्योंकि उन्होंने देखा तो नहीं था बारहसिंगा, लेकिन एक सोच होती सबकी अपनी अपनी कि वो क्या बनाना चाह रहा है। तो एक आर्टिस्ट के नजरिए से स्वामीनाथन जी ने देखा कि हाँ ये कुछ कलाकार ऐसे हैं कि कुछ अलग अलग सोच है इनकी, तो इनको लेके जाना चाहिए। मम्मी से जिससे पूछा उन्होंने तो ये क्या है, तो मम्मी ने बोला ये जीवन है, ये एक पेड़ है इसमें जीवन चल रहा है पूरा का पूरा, इंसान भी उसी के पेड़ के पीछे चलते हैं, जानवर भी उसी के पीछे हैं, और कुछ चिड़िया है तो वो भी उसके पीछे हैं। तो उसमें कुछ बर्ड्स बने थे, कुछ हिरन बना रखे थे उन्होंने, नीचे गाय बनाए थे। तो बोला चलो ठीक है एक काम करो, इनको इस लड़की को भी लेके चलो, ये दो लड़के इनको भी लेके चलो, तो ये तीनों आने को तैयार है नहीं वहां से, हमको नहीं जाना है। तो फिर मेरे नाना जी भी थे, उन्होंने बोला उसको उठाओ सुमेर को, वो भी चलेगा साथ। जब वो चलने को तैयार हुआ तो मेरे मम्मी के बड़े भाई हैं नर्मदा प्रसाद टेकाम जी, तो सबसे मतलब मेरे फादर के बाद जो सीनियर कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम के बाद जो 3rd नंबर लगता है तो उनका नाम है। फिर वो उन्होंने बोला उसको भी लेके चलो, तो फिर उन्होंने ऐसे 5-6 कलाकार, टोटल 7 कलाकार हुए वहां से, उन्होंने बोला उसको लेके चलो उसको लेके, जैसे फ्रेंड सर्कल होता है ना, तो नहीं हम सब साथ जाएंगे। जब 7 लोग आने लगे तब उन्होंने बोला कि 14-15 लोग इकट्ठे चलते हैं, तो वहाँ गाँव से सब लोग चलना स्टार्ट किया। उस वक्त रोड नहीं थी, कच्ची सड़क थी, तो वो जा रहे थे, तब आते आते उनका आते क्या हुआ कि कुछ जीप में जाते, जीप चलती थी उस टाइम, तो जीप में जब आने लगे तो 15-16 लोगों में से सिर्फ वहां से सिर्फ 5 लोग आए, जिसमें मेरे दादाजी, मेरे मम्मी, मेरे पापा और नाना, मेरे मामा, बस इतने लोग ही आए वहां से। बाकी सब कूद कूद के भगे, बोलते ये हमको ले जा रहे हैं इस पहाड़ के उस तरफ ले जाके ये हमको बेच देंगे। तो वहां से आया ही नहीं कोई, लेकिन जब वो वहां से यहाँ भोपाल आए तो उस वक्त भारत भवन तैयार हो रहा था बन के। जब भारत भवन तैयार हुआ तो उनको नहीं मालूम था, उस वक्त जब वो काम करते थे पापा वगैरह और मम्मी, तो वो लोग क्या करते थे, एक लकड़ी लेते थे उसकी कूची बनाते थे, तो पतली लकड़ी है तो पतला काम करने के लिए पतली कूची बनाई उनने, फिर मोटी लकड़ी तो मोटी, पेंट करने के लिए फिर हाथ का यूज करते थे, कपड़ा ले लिया उनने तो उसको यूं पेंट करते थे। जब वो भारत भवन आए तो उनको उनको बहुत सारे, पहली बार उनको पता चला कि कलर्स भी कुछ होते हैं, एक्रिलिक कलर क्या होता है। उनको जब उनको मल्टी कलर्स नजर आए कि इतने सारे कलर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम उसको कैसे यूज कर सकते हो, कलर्स को कैसे यूज कर सकते हो। संभव भाई, एक जस्ट मैं इंटरप्ट करूंगा, भारत भवन का जो नाम ले रहे हैं, इट इज बेसिकली ना ऑटोनोमस मल्टी आर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड इट्स अ म्यूजियम इन भोपाल। तो उन्होंने देखा यार इसको कैसे यूज करोगे, तो उन्होंने क्या किया, स्वामीनाथन जी ने कहा कि उनको सबसे पहले ब्राउन पेपर जो होता था, अभी भी बच्चों को हम बुक्स वगैरह रैप करते हैं, वो ब्राउन पेपर दिया, पूरा का पूरा रोल आता था, तो उन्होंने पूरा रोल दिया, वो तो इस पे काम करो कुछ। तो उन्होंने क्या किया, ब्राइट कलर यूज किए, जैसे एकदम लाइट ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। बोलते ये ब्राइट कलर क्यों यूज कर रहे हो, तो बेसिक रीजन क्या था उनका, ये कहना था कि हमारे यहाँ जो लेडीज होती हैं सबसे ज्यादा यूज करने वाला, उनको सोना पहनना है, उनको नाक की नथ हो गई, कान की बाली हो गई,
या फिर चूड़ा पहनना है तो पतला पतला नहीं पहनेंगे, अगर चांदी का है तो बहुत मोटा मोटा दूर से दिखे चमके। साड़ी पहननी है तो ब्राइट कलर पहनना है, एकदम ब्लाउज पहनना तो बहुत ही ब्राइट होना चाहिए, मतलब दूर से नजर आना चाहिए। उनका ये कहना था कि कोई भी चीज जैसे नजर आता है, हम अगर बेसिक कोई जानवर भी देखते हैं तो दूर से बहुत बड़ा सा और बहुत ब्राइट कलर होता है उसका। हिरन भी देखो तो हिरन येलो नजर आएगा, गोल्डन नजर आएगा, उसमें चिट्टे चिट्टे नजर आते हैं। तो मेन बेसिक क्या होता है पेंटिंग करने का, मैं जहां तक मैंने एनालाइज किया है उनसे पूछ के मैंने कुछ सोचा समझा, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ डिजाइन अगर वो करते हैं तो क्यों करते हैं, तो संजय जो भाई, दूर से दिखता है वो पास से नजर नहीं आता है। तो मेन रीजन उनका यही था पेंटिंग करने का, बहुत ब्राइट कलर यूज करना। गोंड आर्ट का ही मेन फॉर्म था कि पहले सबसे पहले भित्ति चित्र, उसके बाद कंटिन्यूसली चला कि उसको भित्ति चित्र बोलते थे, लेकिन भित्ति चित्र बेसिकली जब पता चलने लगा कि भित्ति चित्र मधुबनी में भी होता है, वर्ली में भी होता है, बहुत सारी जगह होता है। तो उस वक्त पापा मेरे ग्रेजुएट हो चुके थे, वो पढ़ते थे, तो उनको मालूम था क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि एक आर्ट फॉर्म को कैसे नाम देना है, आप क्या नाम दोगे। फिर उनको फ्रांस से लेस्ली मैडम थी, उनका मुझे पूरा नाम याद नहीं है, वो आई और उनको कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनानी थी। तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाने जब यहाँ पे आई तो पापा के साथ घूमे तो उन्होंने कहा अच्छा तुम कौन से उसको मतलब कौन सा ये कौन सी कैटेगरी का आर्ट फॉर्म है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं हम तो इसको भित्ति चित्र बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बोलते चलो ठीक है भित्ति चित्र बोलते कुछ अलग है। तो उन्होंने फिर नाम पूछा, अच्छा आपका नाम बताओ, उन्होंने बोला आनंद श्याम। अच्छा आनंद श्याम है, कलावती श्याम है, कलावती श्याम, जनगण सिंह श्याम है, ठीक है। बोलते श्याम किस उसमें आते हैं, इनका कौन सी कास्ट है क्या है। तो जब उन्हें कम्युनिटी पूछी तो उनको पता चला कि गोंड है। तो उन्हें सबसे पहले उनको एकदम शॉक हो गई, बोलते नहीं गोंड है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में गोंड नहीं है कहीं। तो तब उन्होंने बताया पापा को और सबको बताया, बोलते सबको बुलाओ जितनी कम्युनिटी आपने जो रखी है यहाँ पे सबको बुलाओ, उसको बताएंगे कि गोंड कम्युनिटी एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में गायब हो गई है, जिसको मालूम ही नहीं। गोंड फॉर गोंडवाना, गोंडवाना लैंड से गोंड लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो एबोरिजिनल लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं सिर्फ वो कहते हैं कि हम वो गोंड उसके हैं, लेकिन उनका फिर कुछ उन्होंने पेंटिंग्स दिखाई, कुछ फोटोज दिखाई, उन्हें देखो उनकी पेंटिंग कुछ आपकी पेंटिंग से मिलती है, इसलिए हम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। तब उनको पता चला कि गोंड लोग जो हैं अभी भी हैं, इंडिया में हैं, जो रहते हैं। फिर वहां से धीरे धीरे गोंड कम्युनिटी को बढ़ावा मिला, सबको पता चलने लगा कि हाँ गोंड लोग हैं यहाँ पे, वो काम करते हैं। क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे मालूम है गांव से कोई नहीं आता था। मैं 5-5 साल में गांव गया हूँ, शायद मैं अगर लास्ट टाइम गया तो शायद मैं 7वीं बार हूँ जब मैं गांव गया, क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहता था गांव, क्योंकि मुझे मालूम है यार गांव जाओ तो वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। क्योंकि हमेशा मैं जबलपुर, मेरी पैदाइश जबलपुर में हुई, 1986 में मैं वहाँ मेरा बर्थ है। तो मैं शहर में पैदा हुआ, शहर से सीधे शहर में आ गया, भोपाल आ गया। अब मुझे तो शहर ही पता था, गाँव तो कभी गया ही नहीं, देखा ही नहीं मैंने। लेकिन जब मैं 5 साल की उम्र में गाँव गया तो मुझे एक एहसास हुआ कि नहीं गाँव में नेचर क्या होता है, क्योंकि नेचर देखना, नेचर के बारे में जानना। मेरी मम्मी बहुत अंदर रहती थी, अमरकंटक आपने सुना होगा, तो जहाँ से नर्मदा जी निकली हैं, जहाँ से नर्मदा जी निकली वहां से 4 किलोमीटर अंदर गांव पे और अंदर जंगल में मम्मी का घर था, मम्मी का मायका आज भी है। हम कभी कभी जाते हैं सिर्फ देखने की, क्योंकि उसको पूरा वन विभाग ने संरक्षित कर रखा है, सिर्फ हम देखने जाते हैं घर को अपने, बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते वहां पे। तो उस वक्त हम देखते थे कि कुछ, जब हम सोते थे वहां पे तो हमको भालू भी देखने को मिलता था, बारहसिंगा भी देखा हमने बाघ भी देखा। तो कभी कभी डर भी लगता था जाने में, तो मैं जाता ही नहीं था, मुझे डर लगता है, मेरे को जाना ही नहीं, क्योंकि हमने टीवी देखी तो हमको पता था कि बाघ क्या कर सकता है, भालू क्या कर सकता है। वहां से हमने देखना चालू किया, तो फिर कुछ नेचर को मैंने भी समझा उस वक्त जब मैं बड़ा होने लगा धीरे धीरे, हाँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये जो पेंटिंग क्या होता है। कुछ भालू और आपके पेंटिंग में भी दिखाइए ना, जरा कहीं कुछ दिखाइए पेंटिंग में। मैं एक चीज दिखाता हूँ, भालू तो मुश्किल होगा मनीष जी, हाँ है, सॉरी मैं दिखाता हूँ। हाँ कुछ यहाँ दिखाइए जरा आपकी कुछ नहीं, सब कुछ। So by the time he is showing that, I mean, that's a story of master artist from himself, by himself. That's his mother. Pranam Sambhaji, and thank you so much. ये क्या है? ये एक्चुअली ये मेरी पेंटिंग है। ये नंदी है ना, ये यात्रा पे निकले हैं, शंकर जी उनके ऊपर हैं और नागराज भी हैं साथ में।
तो नंदी जी के ऊपर बैठ के वो यात्रा पे चल रहे हैं। वो जो मैंने लीव्स बनाई हैं, जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, जो पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, तो जंगल में वो एक यात्रा पे निकले हुए हैं। अच्छा। और ये कुछ पुरानी पेंटिंग्स हैं मेरे फादर की। थोड़ा सा तो जूम उस टाइप की पेंटिंग बना देते तो मम्मी डर जाती थी, बोलती ये क्या लिजर्ड वगैरह बनाते हो आप लोग, क्या करते हो। ये मेरे पापा की पेंटिंग है। ये लोमड़ी है, फॉक्स है ये दो। और ये खेत के ऊपर एक मचान बनाते हैं ना, ये वो है। तो उन्हें पूरा एक खेत का पूरा दृश्य, ये शेड जो पीछे के नजर आ रहे हैं वो जैसे खेत दूर से नजर आता है वैसा है। पेड़ भी हैं कुछ और ऊपर मचान बना हुआ है। और ये जो बने हुए हैं ये कुत्ते हैं। ये दो कुत्ते चौकीदारी कर रहे हैं। ये लोमड़ी है जो नीचे बैठे हुए हैं। Very nice. For everyone who understands only English, that's a tree house in the farm. Even asked about the और ये ओरिजिनल फॉर्म है जो गोंड आर्ट का है। इसे कहते हैं ढिगना। बेसिकली घरों में यही यूज होता है बनाने के लिए, ढिगना बनाते हैं। तो जिस तरीके से बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं घर को सजाने के लिए, दरवाजे हो गए। religious symbol for the Gond community, हाँ। which is even सारे घर के बाहर जो है वो it is a symbolic this thing. तो वो ये सिखाएंगे क्या जब ये क्लास लेंगे तभी दिखना? Of course, why not? जी, of course. वो बहुत कम देखने को मिलता है ना। गोंड आर्ट अभी ऑनलाइन भी जाएंगे तो मिलेगा देखने को, लेकिन वो जो उनका रिलीजियस सेरेमनी है ना वो नहीं दिखेगा। Of course, नुसरत जी आप आइए तो सही साहब। जी जी आएंगे ना जरूर। ये तो बिल्कुल एंडलेस है। ये कितना बड़ा है संभव जी? कौन सा ये वाला? इसका साइज कितना है? ये 3x4 है। Okay. 3x4 feet, 3x4 feet. Okay, it's almost like life size. Wow. ये भी आप घर पे ही हैं क्या अपने स्टूडियो पे हैं? नहीं, स्टूडियो पे हूँ अभी। अच्छा। एक मैं बात पूछूं कि ये कैनवस पे करना ज्यादा अच्छा है कि फिर वो कैनवस पे वो जो कैनवस बोर्ड मिलता है तैयार उस पे करना अच्छा है, कि कैनवस का कपड़ा मिलता है कॉटन का? मैम कैनवास एक्चुअली नहीं, कैनवास बोर्ड भी आता है, कैनवास आपका फ्रेम करा हुआ भी आता है, कैनवास का कपड़ा रोल में भी आता है। तो मैं वही बोलती हूँ कि रोल पे करना अच्छा है ना, तो हमको जितनी साइज करना है हम कर सकते हैं। नहीं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग क्या करते हो? मैम हम तो रोल ही लेते हैं क्योंकि हमको काम करना रहता है। तो वही तो बोलते हैं, फिर हमको जितना साइज चाहिए इतना कर सकते हैं ना, कांच के फ्रेम कर सकते हैं। हाँ हाँ जी जी। ये एक्चुअली हमारे गांव में इसको मैं उतार के दिखाता हूँ। ये थोड़ी लाइट चमक रही है। अच्छा। इसका एक रीजन, इसकी कहानी है। मेरे फादर बताते हैं मुझे, मम्मी भी बताती थी। ये है 4 मुंह की बिल्ली है। हमारे गांव में एक्चुअली एक बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया था। तो ये वाकया कभी पापा बोलते नहीं है, हमेशा बनाते हैं। बोलते हैं वो 4 महीने जिंदा रही वो 4 मुंह की बिल्ली। और 4 महीने के बाद किसी को देखने को भी नहीं मिली, किसी को पता भी नहीं चला वो मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ। लेकिन वो उसका 4 सर थे उसके। अच्छा। वो चारों मुंह से पीते थे, अलग अलग पीते थे, लेकिन जिंदा बराबर थे वो बेसिकली। We have seen in human beings also. कई बार मिलते हैं। ये आपकी माँ की पेंटिंग है? अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत सी है, कुछ रखी हुई है। These are the real treasures, संभव जी। जी चलिए, बहुत बढ़िया। अब in the interest of time, what I will suggest is कैनवस के अलावा हम लोग thank you. Can I ask you a question? Yeah, please. Yes, please. But you have kept both the workshops at 4 to 5:15 from Monday 28th to 31st. What are we to do? There's a Madhubani workshop which I have joined. Okay, so we will anyways touch base with you offline. We will work out something. Yes. No, because recordings, I asked Shilpa meanwhile, but recording is no fun, Ray. That is true. That is true. So we are trying to work it out because see, Sambhavji is also just coming back from a break. So obviously he has a lot of responsibilities at home that he has to address. Yeah, I understand. You have to chalk a way out. Yeah. So I mean, for second thing, I will request you to give the recordings. Why don't you give the recordings? Maybe because I'll tell you why.
even if we write, see, I take down